Yes, sir, this is my first attempt as well. Very good that you have made it to the interview in the very first attempt. अच्छा, तो Thank you, sir. what we'll do is we will go through the DAF and we'll cover the key areas from where questions can come to you in the interview. The idea is to make a Okay, list of sir. these keywords of your DAF and send that to me on WhatsApp. And I'll go through your DAF again afterwards and I'll add to that list if anything else has been missed that I feel needs to be added. And I will send that to Raj Malhotra's IS study group and they will make a question bank for you. Okay, sir. ठीक है। पहला चीज इंटरव्यू में ये ध्यान रखना कि मेंस वाले अप्रोच से आप प्रिपेयर मत करना। अब वहां पे जितने भी सब लोग जा रहे हैं दे हैव क्लियर्ड द मेंस, तो वो मेंस वाला आंसर हर कोई दे सकता है। व्हाट यू नीड टू डू इज कि यू नीड टू स्टैंड आउट, यू नीड टू ऐड वैल्यू टू द कॉन्वर्सेशन, यू नीड टू टेल पैनल मेंबर समथिंग दैट दे डिडंट नो ऑलरेडी। ठीक Okay, है। sir. उसके बाद फिर अनदर थिंग इज दैट कि आप जो आंसर्स देंगे उसमें यू Mm-hmm. यू शुड ट्राई टू यूज एज मेनी ऑफ योर लाइफ इंस्टेंसेस एज पॉसिबल। You don't have to lie, but then try to make it relatable, try to make it realistic, try to inculcate your life instances and the things that you learned in your graduation subject, in your optional subject, in your hobbies। तो वो सब्सटैंशिएट करता है आपके इंटरेस्ट को, अगर आप बोलो मुझे कि एक्स वाई जेड सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या इसलिए मैंने उसको ऑप्शनल लिया, या फिर ये हॉबी है, आई परस्यू दिस, दिस इज व्हाट आई लर्न। तो एज फार एज यू आर एबल टू शो द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन दैट, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, इट विल ऐड टू योर स्कोर। ये कोशिश मत करना कि सारे के सारे आंसर्स देना इंटरव्यू में, वो मेंस वाली अप्रोच विल नॉट वर्क। ठीक है। तो वी कैन चूज द टॉपिक्स दैट यू वांट टू टॉक अबाउट इन डिटेल, जिसमें आप अच्छा कॉन्वर्सेशन बना सकते हैं, उस पर डिटेल्ड बात करिए। अगर नहीं बना सकते हैं, आपको पता है कि ये टॉपिक मेरे स्ट्रेंथ का नहीं है, आई डोंट रियली वांट टू स्पेंड दैट मच टाइम ऑन इट, क्योंकि आपको 30 मिनट ही मिलेंगे, तो you can Mm-hmm. decide कि you don't want to spend a lot of time on a particular topic because it might not be conducive for you to make a good conversation with the interview panel members। और good conversation का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपने जवाब दे दिया। गुड कॉन्वर्सेशन का मतलब ये होता है कि एक ही टॉपिक पे अगर टू एंड फ्रो हो, डिस्कशन हो, तब इट वुड मेक सेंस। ठीक है। तो बी माइंडफुल ऑफ दैट। Okay, sir. ठीक है। उसके बाद फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू इज कि योर नेम। ठीक है। Meaning of your name, how have you applied that in your life? What can you bring from that to civil services? Prominent people by that name, their contribution to public life, and what did you learn from them? How did you apply that in your life, and what can you bring from that to civil services? ठीक है। उसके बाद अगली चीज ये है कि हाँ, इंटरव्यू में जो बताया था ना मैंने, टू एंड फ्रो तब होता है जब आपने कुछ पूछा फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन या फॉलो अप किया, तब जाके Mm-hmm. इट मेक सेंस। अदरवाइज ऐसा नहीं कि वाइवा टाइप चलता है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा फिर आपने आंसर कर दिया, फिर उन्होंने किसी और टॉपिक पे कुछ पूछ लिया आपने आंसर कर दिया, ऐसा नहीं Yes, होता है। sir. ठीक है, Okay, sir. इसका ध्यान जी रखिएगा। जी। At least in your DAF, you should know more than the panel members would. This is what your aim during preparation should be. As a rule of thumb, DAF में one introductory question and three cross questions you should be able to answer. So your date of birth, so anything important that happened on the date of your birth and the date of your interview, so that you need to prepare it. And if it pertains to Indian history, geography, polity, economy, culture, current affairs, then it will be important by default. Otherwise, you can pick and choose the topic from Wikipedia. You will find a list of important things that happened on the date of your birth and the date of your interview। तो उसमें जिस भी डोमेन से आप कंफर्टेबल हो उसको चूज कर लीजिएगा। ठीक है। कि मे बी हिस्ट्री और इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आर्ट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो उसमें चूज कर लेना एंड कैरी द कन्वर्सेशन इन दैट डोमेन। ठीक है। दिस इज अ गुड वे टू डाइवर्ट द टॉपिक कॉन्वर्सेशन टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट बाय द वे। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, तो whenever there are states or places in your type you need to prepare on the lines of society, geography, economy, polity, history, culture, current affairs, salient issues of उत्तर प्रदेश। जैसे ईस्ट वेस्ट में डिस्पैरिटी, तो विभाजन होना चाहिए कि नहीं उत्तर प्रदेश का, 20-21 साल से ज़्यादा हो गए विभाजन हुए, तो Mm-hmm. हैज़ इट बीन बेनिफिशियल फॉर द टू स्टेट्स और नॉट। तो और उत्तर प्रदेश अभी स्टिल बीमारू है कि नहीं, व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट। ठीक है। तो बीमारू है कि नहीं, और हाउ हैज द बेनिफिशियन, हाउ हैज द बाइफर्केशन बीन, उसको यू कैन आंसर ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ Yes, रेट, sir. इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, रिडक्शन ऑफ आईएमआर एमएमआर, इंक्रीज ऑफ लिटरेसी, इंक्रीज ऑफ पर कैपिटा जीडीपी और जीएसडीपी, वो देख Mm-hmm. लेना। यू कैन यू कैन गिव, you need to give data in support of your opinion, you can have whatever opinion you want to। उसके बाद फिर
उत्तर प्रदेश में वो कास्टिज्म वाला इशू बोलते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में ये कि मंडल का मंडल की पॉलिटिक्स वाला टैग लगता है। फिर अलेजिड एनकाउंटर किलिंग्स वाला इशू है। मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, फिर हेरिटेज टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश, डायनेस्टी दैट रूल्ड उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में नेशनल ये गंगा रिवर क्लीनिंग, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है। Yes, sir. उसके बाद फिर schemes of Uttar Pradesh, government of Uttar Pradesh that you think the central government should emulate as well. उत्तर प्रदेश के रैंकिंग इन इंडाइसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या सिटीज या Mm-hmm. उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट की जो भी रैंकिंग जैसे भी रेलेवेंट है, समटाइम सिटीज रैंकिंग या डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग कम्स, तो जहाँ पे भी जैसे रेलेवेंट है वो देख लेना। ठीक है। फिर उसके Yes, sir. योर ऑप्शनल इज ज्योग्राफी एंड योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो हाउ डज Yes, sir. ज्योग्राफी इम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये जरूर देख जाना। ज्योग्राफी से दे कैन गो इनटू डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, और सेंडाई फ्रेमवर्क, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सब जरूर देख लेना। उसके बाद ये Hmm. आएगा कि टेक्नोलॉजीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन दैट कैन बी यूज्ड इन डिजास्टर। फिर anthropological causes for civilian disaster, what disasters उत्तर प्रदेश is vulnerable to। क्लाइमेट चेंज में जा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट्स, हीट वेव, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। फिर geography से they can go into location of industries, industrial development in India। they can also go into human geography, migration वगैरह हो गया। ठीक है। एंड उसके बाद they Yes, can sir. also go into geography से क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड एग्रीकल्चर। तो जो भी करंट अफेयर से न्यूज में रहा होगा, फ्लैगशिप स्कीम्स, जनरल स्टडीज, ठीक से देख लेना उसको उसका। फिर सिंस योर Yes, sir. फादर वर्क्स इन, अच्छा ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी से एनवायरमेंट कंजर्वेशन में भी जा सकते हैं बाय द वे, उसका ध्यान रखना। एनवायरमेंट, Hmm. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन Yes, एक्ट, sir. राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का नया अमेंडमेंट आया। उसके बाद दे कैन ऑल्सो गो इनटू बायोडायवर्सिटी Yes, sir. एक्ट, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, मेजर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसका ध्यान रखना, मतलब प्रिपेयर कर लेना। फिर अभी COP 28 हो रहा है, तो उसके Yes, sir. आउटकम, CCC, क्योटो प्रोटोकॉल, CBD, CCD, नागोया प्रोटोकॉल। फिर जो भी बॉडीज न्यूज में रहेंगी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, INDCs, उसमें गवर्नमेंट का प्रोग्रेस, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट्स। फिर उसके बाद सिंस योर फादर इज इनटू वेटरनरी, मतलब एनिमल केयर, तो एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरिंग, फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री, वो देख लेना। ठीक है, तो उसमें क्या इनिशिएटिव है Yes, लेटेस्ट, sir. ब्रीडिंग पॉलिसी क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन स्टेटस ऑफ इंडिजिनस कैटल एंड एक्सोटिक ब्रीड क्या है, सजेशंस फॉर डेयरी डेवलपमेंट इन इंडिया, अमूल इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ, फिर अमूल के जैसे और दूसरे कौन से ब्रांड्स हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नॉट सक्सेसफुल इन बफेलोज, व्हाट आर द रीजन, सहीवाल क्या होता है, डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर व्हाट, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड व्हाट वर्क डज इट डू, एनिमल सेंसस कब होता है, ऑक्सीटॉक्सिन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज डू यू फ्रीक्वेंटली सी इन कैटल इन इंडिया। फिर फिशरीज एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया। Yes, sir. फिर 193032, दैट इज ओके। फिर उत्तर प्रदेश आपका, पेरेंट्स के डिस्ट्रिक्ट, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू विजिट दोज डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, उसके बारे में सेलिएंट चीजें जरूर पढ़ लेना। उतना डेप्थ में ना भी जा पाओ तो दैट इज ओके, बट सेलिएंट इश्यूज एंड न्यूज। बुंदेलखंड इशू, बुंदेलखंड का डेवलपमेंट, ठीक है, ये जरूर सही से देख जाना। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिखा है आपने, Yes, sir. तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, नोबेल प्राइज, पीस मेडल, इनको क्या मतलब, नोबेल प्राइज एंड फील्ड मेडल किनको क्या मिला, उनकी थियरी के इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस इफ एनी, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, श्रेष्ठी पॉलिसी क्या है, IPR पॉलिसी क्या है, रिसर्च में बेसिक अप्लाई ट्रांसलेशनल रिसर्च क्या होता है, उसको प्रमोट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, Yes, sir. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साइंस को प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। उसके बाद हाँ, आपने फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लिखा है, बहुत बड़ा डोमेन होता है, और इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि
Sometimes panel members tend to confuse electronics with electrical engineering. Hmm. ठीक है, तो Yes, sir. उसमें they can ask you about the energy mix of India, and then power generation, transmission, distribution, discom reforms, Uday 1, Uday 2. Where they can also go into contribution of renewable energy, non-renewable energy, targets for renewable energy, import dependence का reduction of non-renewable energy, and non-renewable फिर इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ाने का या फिर डिपेंडेंस बढ़ाने का रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या टारगेट्स हैं, एंड व्हाट डू यू थिंक इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी दैट इंडिया इज प्रमोटिंग or India is trying to reduce its dependence on non-renewable energy, yet hydrocarbon exploration licensing policy has come. So India wants to explore and produce non-renewable energy, yet it wants to reduce its dependence on that, and it wants to focus more on renewable energy. So contradictory नहीं है. What do you understand by that? What is your opinion? स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या है? ठीक है, फिर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, नेशनल डेटा रिपोजिटरी, इसका क्या स्टेटस है? अभी क्या कंट्रीब्यूशन है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज का? कितना इंपोर्ट करते हैं, फिर कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? So, ठीक है, yes, उसके बाद फिर रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज, तो सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल, बायोफ्यूल्स और टाइडल वेव्स, इनका क्या क्या पोटेंशियल है इंडिया में? फिर टारगेट्स क्या क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, व्हाट इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी, रूफटॉप सोलर में हैज इट बीन सक्सेसफुल और नॉट? ठीक है, उसके बाद फिर वायबिलिटी गैप फंडिंग, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, फिर डू यू एग्री विद लार्ज डैम्स और नॉट, न्यूक्लियर एनर्जी का क्या स्टेटस है, डू यू थिंक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट? ये तो एनर्जी मिक्स हो गया. उसके बाद दे कैन गो इनटू ई व्हीकल्स, तो इनिशिएटिव्स फॉर प्रमोशन ऑफ ई व्हीकल्स हो गया, स्टेटस ऑफ hmm. ई व्हीकल्स इन इंडिया, बैटरी टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस, लिथियम मिलने का क्या इंप्लीकेशंस है, रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, वेयर डू वी इंपोर्ट देम फ्रॉम, हाउ कैन वी डाइवर्सिफाई इंपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, फिर फेम 1 फेम 2 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, फिर दे कैन ऑल्सो गो इन टू टेलीकम्युनिकेशन की 4G 5G 6G में डिफरेंस क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया, AI, AR, VR, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ये सब एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स से. तो state of Yes, the sir. art in that initiatives taken by India for the development in India and economic impact, regulation of AI, data protection bill, big data के 6 V's, इस सब पे भी जा सकता है. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से दे कैन गो इनटू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इनिशिएटिव्स टेकन फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, PLI, फेज मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, ये सब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो दे कैन गो इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एज वेल. How Yes, successful sir. it has been, what can be the what it can India learn from Shenzhen in electronics manufacturing, if anything can be learned. फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से दे कैन ऑल्सो गो इनटू ई वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स, इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस, टेक्नोलॉजी फॉर extraction of precious metals out of e-waste by rag pickers that can save them from the negative side effects. Here you went to Jabalpur and originally you are from Uttar Pradesh. So compare and contrast life in Gonda and Jabalpur. तो सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स में कंपेयर Hmm. करना चाहिए, क्योंकि आई एम फ्रॉम भोपाल, आई वेंट टू कानपुर फॉर ग्रेजुएट स्टडीज, तो दे आस्क्ड मी कंपेयर एंड कंट्रास्ट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ भोपाल एंड कानपुर. ठीक है, तो प्रिपेयर कर लेना उस तरीके से. Okay. उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में यू वर्क फ्रॉम 2021, जुलाई 2021 टू सितंबर Yes, sir. 2020. So why do you want to come from private sector to governance? What will you bring from private sector to governance in terms of work culture, in terms of implementation or usage of technology? Then you were in Bangalore for a year, more than a year, 14 months. So what compare and contrast the life in Bangalore, Gonda and Jabalpur? Bangalore के problems in terms of urban development या traffic congestion या pollution या IT industry के development के लिए what initiatives were taken? Startup के लिए promotion के लिए Bangalore की क्या policy थी? It is said to be very startup friendly. So what are the reasons for that? फिर salient issues of कर्नाटका, ये जरूर प्रिपेयर कर लेना. ठीक है, उसके बाद फिर आपके प्राइजेस, मेडल्स एंड स्कॉलरशिप देखें तो उसमें लिखा रिप्रेजेंटेड इंडिया इन जापान जेंसिस प्रोग्राम. ठीक है, तो इंडिया जापान रिलेशंस, इंडो पैसिफिक, इंडिया चाइना, ऑकस, क्वाड, ब्लू डॉट नेटवर्क, स्ट्रिंग ऑफ वर्ल्स, साउथ चाइना सी इशू. ठीक है, U2 एम्फीबियन एयरक्राफ्ट,
और जापान का इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, फिर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे, ये सब जरूर देख जाना। ठीक है। एंड व्हाट डिड यू डू इन दैट प्रोग्राम, व्हाट वाज द Yes, आउटकम sir. ऑफ दैट प्रोग्राम, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट कैन यू अप्लाई फ्रॉम दैट टू सिविल सर्विसेज। ठीक है। Yes, उसके sir. बाद फिर विनर ऑफ टेक्नोवेशन कंपटीशन इन कॉलेज फॉर प्रोटोटाइप RFID बेस्ड BUs, बस स्टेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। ठीक है, काफी अच्छा है। तो इससे दे कैन गो इनटू इनोवेशन रिसर्च इन इंडिया, इनिशिएटिव्स टेकन फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन इंडिया। ठीक है। तो दे कैन गो इनटू Yes, sir. इम्पैक्ट इंस्पायर उन्नत भारत अभियान, IPR पॉलिसी, श्रेयस Yes, स्कीम, sir. एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंडस्ट्री एकेडमी लिंकेज प्रमोट करने के इनिशिएटिव्स। ठीक है। Yes, इंडस्ट्री sir. एकेडमी लिंकेज हो गया, नहीं तो फिर लैब टू फील्ड ट्रांसमिशन ऑफ रिसर्च हो गया। ठीक है। इस सब के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, फिर इनोवेशन प्रमोशन के लिए अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, रिसर्च पार्क, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स। फिर उसके बाद IPR पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है, 8 साल हो गया आए हुए तो। ठीक है। उसके बाद प्रोटोटाइप RFID बेस्ड बस स्टेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। तो इनिशिएटिव्स टेकन फॉर प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मेजर स्कीम्स, RFID टेक्नोलॉजी, हाउ डज दैट वर्क। ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड आपने Yes, लिख sir. दिया, फिर इसमें राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इनिशिएटिव्स टेकन फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ये सब जरूर ठीक से प्रिपेयर करके जाइएगा। ठीक है। What are the latest Yes, technology sir. advancements in the field of Yes, electronic sir. that can help persons with disability? फिर बेस्ट इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया इन 2020। ठीक है। तो व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ योर्स फॉर विच यू वर सिलेक्टेड द बेस्ट इंटर्न, एंड देन 400-meter relay race, then whenever there are sports and athletics in your DAF, you need to prepare on the lines of rules and regulations, history, static evolution, technique, technology, personalities, associated initiatives for promotion of sports, performance of Indian international events organized globally। ठीक है। एंड Hmm. इनिशिएटिव प्रमोशन ऑफ दैट स्पोर्ट और स्पोर्ट्स इन जनरल। फिर क्या ट्रेनिंग Hmm. रेजिमेंट होता है रिले रेस के लिए, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्प्रिंट रेस, व्हाट काइंड ऑफ इंजरीज कैन हैपन, व्हाट काइंड ऑफ इक्विपमेंट इज नीडेड, ओलंपिक्स में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम हो गया, नहीं तो खेलो इंडिया हो गया, क्या क्या अवार्ड्स एंड ऑनर स्पोर्ट्स में मिलते हैं, डोपिंग का क्या इशू है, कैसे Yes, sir. रेगुलेट होता है। ठीक है। फिर हेड कोऑर्डिनेटर स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विस इन कॉलेज, तो व्हाट काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज और व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज इन जनरल स्टूडेंट्स फेस इन कॉलेज, हाउ डू यू आइडेंटिफाई इफ समवन इज अंडरगोइंग डिप्रेशन, व्हाट काइंड ऑफ challenges did you face, or what kind of help you extended to your counselees, or as a head coordinator what initiatives did you take, what advice would you give to the current head coordinator, skill development, vocational development के लिए क्या initiatives आपने लिए, mental health issues को address करने के लिए क्या initiatives लिए, what suggestion would you give in policy making for higher education, event Yes, coordinator sir. during the cultural festival of college in 2018 and prefect at school। prefect at school से वही कि प्राइमरी एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वोकेशनल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीम वर्क, लीडरशिप डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए आपने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, व्हाट रिफॉर्म शुड बी ब्रॉट इन एजुकेशन, पेडागोजी, करिकुलम, टेक्नोलॉजी। ठीक है। फिर इवेंट कोऑर्डिनेटर Yes, से sir. बेसिकली वही क्वेश्चन आता है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, और इतने लाखों और करोड़ों रुपए के इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड। ठीक है। उसके बाद फिर द कल्चरल फेस्ट ऑफ कॉलेज इन 2018। हाँ, तो तरंग हो गया, तरंग से वेव्स, थोड़ा बेसिक फिजिक्स के बारे में देख जाना। एक तो आप Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड Hmm. कम्युनिकेशन से हो, दे कैन ऑल्सो गो इनटू सोशल मीडिया, बाय द वे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया, रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है। ठीक है। डीप फेक के बारे में क्या Yes, sir. क्या अभी न्यूज में रहा है, व्हाई हैव डीप फेक्स बीन इन न्यूज, व्हाई वर सोशल मीडिया आउटलेट्स कमेंट समन्ड फॉर दैट। ठीक है। उसके बाद फिर Yes, sir. resources, human and financial resources go into planning of an event. What are the portfolios under which you need team members, and what are the challenges you face? What can you bring from your experience to administration? फिर watching English sitcom TV shows. What kind of sitcom do you watch? What have you learned from that? फिर English से India EU, India UK, India US relations पे भी जा सकते हैं। Hmm. ठीक है। कथक डांस, तो Yes, sir. डांसिंग का, कथक, what kind of classical dances are there in India? How do you uh, how is the dance classified as a classical dance? What are the challenges?
Yes, चैलेंज, sir. व्हाट आर द क्राइटेरिया। फिर कथक डांस से आपने क्या सीखा, अपनी लाइफ में क्या इंप्लीमेंट करा, हिस्टोरिकली कैसे ओरिजिनेट हुआ, अभी क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है कथक डांस, या क्लासिकल डांसेस इज लूजिंग फेवर फ्रॉम द यूथ इन इंडिया, तो व्हाट इनिशिएटिव्स कैन बी टेकन टू प्रमोट Hmm. इट। ठीक है। उसके बाद फिर यूजिंग योर नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हाउ वुड यू प्रमोट कथक डांस। मेरे से पूछा था हाउ वुड यू प्रमोट टूरिज्म डिजिटली, तो ये प्रिपेयर कर लेना। ठीक है। नाट्य शास्त्र में क्या लिखा है, साहित्य संगीत नाटक अकादमी के क्या इनिशिएटिव्स हैं कथक को प्रमोट करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं कल्चर को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद फिर योर कार्ड ऑफ प्रेफरेंसेस, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हरियाणा, उत्तर प्रदेश हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश हरियाणा गुजरात, फिर कर्नाटका, फिर सिक्किम। उत्तर प्रदेश हरियाणा गुजरात कर्नाटका सिक्किम। ठीक है। वैसे मध्य प्रदेश भी रख सकते थे बट हरियाणा के बाद तो मुश्किल था मिलना। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान मिलना मुश्किल होता, राजस्थान आउटसाइडर, उत्तर प्रदेश इनसाइडर के बाद, इसीलिए हरियाणा भरा है। Yes, sir. एंड इसीलिए उसके बाद गुजरात में रहा है। उसके बाद गुजरात भरा है, और फिर कर्नाटका तो ठीक है, सिक्किम का तो स्ट्रेटेजिक रीजन होगा आपका। Yes, sir. अब ठीक है, भर दिया तो भर दिया, पर आई पर्सनली डोंट अग्री विद दैट एंड आई वुड एडवाइज यू टू लुक इनटू द रीजंस व्हाई वन शुड, व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर सिक्किम। ऐसा नहीं कि वो तो ठीक है भर दिया जिससे मिले ना, ये पर्सनली आई डोंट अग्री विद दिस स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो वो देख लेना एक बार। फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात कर्नाटका सिक्किम, आईपीएस में आईएएस आईपीएस आईएफएस, फिर इनकम टैक्स कस्टम्स, फिर ऑडिट, फिर सेवेंथ आपका रेलवे मैनेजमेंट, एट्थ सिविल अकाउंट्स, नाइन्थ डिफेंस अकाउंट, टेंथ डिफेंस एस्टेट। ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क और डिस्कस। Sir, just let me go through. Let us. क्या समझे, आई डेंट गेट यू। So I'm saying that just let me go through my DAP. Let me see if I have any questions. That. Sir, do the panel members also ask upon the types of choices that we made into the cadre list or service preferences as well? Not necessarily, but it is always possible. 5 to Okay. 10% chance is there. They do ask. Okay, sir. Okay, sir. I think you have covered all most of the things for the DAP. ठीक है, तो do make sure that you send me the list of keywords of your DAF। ठीक है। उसके Yes, बाद, sir. Yes, sir. हाँ उसके बाद I'll have a look at that. I'll add to that list if anything else needs to be added, and I will send that to Raj Malhotra's IAS Academy. They will develop a question bank for you। ठीक है। Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. My pleasure. Good luck. Take care.